All right. So, a very warm welcome to all of you. I'm so glad that you accepted our invitation to this pre Christmas program. Even if you're not here on Zoom, I'm grateful that you're watching this video at a later point of time, and I trust that you will stay with us till the end. It's just 5 more days to Christmas, but we are already in Christmas spirit, and we just want to share with you the joy that comes with a true understanding of the meaning and the significance of Christmas, which is the birth of Jesus Christ. हमने ऐसा ही कुछ प्रोग्राम पिछले साल भी किया था जब हम एक होटल में मिले थे। हमने अपने दोस्तों और अपने सहकर्मियों को बुलाया था। हमने गीत गाए थे और भोजन रखा था। लेकिन वो ऐसा समय था जब हम ये सब कर सकते थे। लेकिन आपको पता है आज हालात अलग है। बट we thought that this would be the best way to reach out to our friends, to our batchmates, to our neighbors, and to our colleagues. Now, since this is pre Christmas, we thought that this year we will give some attention to some really remarkable pre Christmas events that happened in the life of one particular young Jewish girl by the name Mary. Our focus will be the manner in which she responds to the things being said to her, the things that will happen in her life, and the lives of those that are connected to her. The way she responds to all of this can be summarized in just two words: I believe. मैं विश्वास करती हूँ. But that raises two questions. Number one, what is it that she believed? वो क्या चीज था जिस पर मेरी या मरियम ने विश्वास किया? Now we will help you answer this question today. But the second important question is, do you believe what Mary believed? That is something that you will have to answer for yourself. Now, henceforth, I will be speaking in English only, and Stephen, who is with me, वो मेरे लिए हम सब के लिए हिंदी में अनुवाद करेंगे ताकि both English speaking and Hindi speaking audience can benefit. All right. Now, as we look at the content of Mary's belief, जैसे जैसे हम मेरी किस विषय पर विश्वास करती थी उसका मूल देखेंगे we want to accomplish two more things. तो हम दो और बातों को यहाँ पर सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। Firstly, we will seek to find in the story of Mary what the true spirit of Christmas is. तो मरियम की दास्तान या कहानी में क्रिसमस का असली सबक क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। What really should be the state of your mind when you think about the birth of Jesus Christ? और फिर यीशु मसीहा के जन्म का जो आप जब ख्याल लाते हो सोचते हो तो तब आपके मन की स्थिति किस तरह की होनी चाहिए वो समझने की कोशिश करें। Now, since the Bible informs us everything about the birth of Jesus Christ, यीशु के जन्म के विषय में जब बाइबल पढ़ा जाए तो बाइबल साफ-साफ तौर पर बताता है कि क्या परिस्थिति थी। we should allow the Bible to tell us how to celebrate his birth. तो क्यों ना बाइबल को ही ये अनुमति दी जाए कि वो हमें समझाए कि यीशु के जन्म को किस तरह मनाया गया। Secondly, we will seek to clear out some confusion concerning Mary's identity. और दूसरा सबक जो हम ये कोशिश करेंगे समझने की वो है कि मरियम की पहचान सही मायने में किस तरह से समझी जाए। Because Mary is considered to be someone and she is believed to be someone around the world. क्योंकि मरियम एक एक व्यक्तिमत्वता के तौर पर क्या है ये सब जानते हैं और उसके बारे में कुछ राय रखते हैं। Now, we will examine if what is generally believed about her
is exactly what the Bible teaches. तो हम ये कोशिश करेंगे, प्रमाण लाने की कोशिश करेंगे कि क्या लोग आमतौर पर जो मरियम के बारे में राय रखते हैं, क्या वही राय बाइबल भी मरियम के बारे में प्रस्तुत करता है? All right, so we'll begin by reading a portion from the Bible, and then we will seek to understand what that portion is intending to communicate. तो शुरुआत करते हुए हम बाइबल के ही एक विभाग को पढ़ेंगे और विभाग को पढ़ने के द्वारा ये कोशिश करेंगे समझने की और जानने की कि बाइबल हमारे साथ क्या, कौन सी वो बातें हैं समझाना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। Now, as the title of the program goes, we will be looking at a passage that concerns Mary. जैसे कि हमारा जो आज का मुख्य शीर्षक है संवाद का, हम समझने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बात जो मेरी के साथ संदर्भित है। But later we will realize that it really isn't about Mary. लेकिन बाद में हमें ये एहसास होगा कि असल में ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये केवल मरियम के बारे में ही नहीं है, It is about someone else, ये बिल्कुल किसी और के बारे में बताया जा रहा है। someone who is infinitely greater than Mary, वो जो एक असीम तौर पर मरियम से भी बढ़कर है and someone who is infinitely more important than Mary. और वो जो असीम तौर पर मरियम से भी ज्यादा जरूरी और अहम है। Now, the portion that we'll read today is taken from the Gospel according to Luke. जो विभाग आज पढ़ा जाएगा वो लूका रचित सुसमाचार में से लिया गया है। Now, the Bible, as most of you may know, is not just one book, but a collection of 66 books. आपको शायद पता हो कि बाइबल केवल एक अपने आप में एक में किताब नहीं, परंतु 66 भिन्न भिन्न किताबों का एक संगठन है। These 66 books are divided into two sections. और ये 66 या 66 किताबें, इनको दो विभागों में बांटा गया है। The first section is called the Old Testament. पहला विभाग उसे पुराना नियम कहा जाता है। There are 39 books in this section. उस विभाग में 39 किताबें हैं। Now, these books record the events before the birth of Christ. इस विभाग में या इन किताबों में यीशु के जन्म के पहले की दास्तानों को बताया गया है And in general were written in anticipation of his coming. और मुख्य रूप से जब इनकी लिखावटों को पढ़े तो उससे एक मसीहा या यीशु का आने वाला जो भविष्यवाणी है, जो उनकी उम्मीद है, एंटिसिपेशन है, उसको मद्देनजर रखते हुए लिखा गया है। The second section of the Bible is called the New Testament, which has the remaining 27 books. लेकिन दूसरा विभाग जिसे नया नियम कहा जाता है, उसमें 27 किताबें हैं। These books record the life and ministry of Jesus Christ. और इन किताबों में यीशु मसीह के जीवन और जिस तरह की उनका सेवकाई थी, उसका रिकॉर्ड रखा गया है। It talks about how the church was established. और इन किताबों में कलीसिया की स्थापना किस तरह से हुई वो बताया जाता है। Talks about what the church taught. और कलीसिया क्या सीख प्रस्तुत करती है ये बताया गया है। And these books are written in anticipation of his second coming. और इस विभाग में हम यीशु के दूसरे आगमन के विषय में जो अपेक्षा है उसको प्रस्तुत करते हैं। Now, the Gospel according to Luke, or simply Luke, is the third book of this second section called the New Testament. नए नियम में लूका रचित सुसमाचार ये क्रमांक में तीसरी किताब है। Luke was a physician by profession. अब हम जब कह रहे हैं लूका रचित सुसमाचार, यानी कि लूका नामक एक व्यक्ति था जो पेशे से डॉक्टर या वैद्य हम कहते हैं वो था। He wasn't a direct disciple of Jesus Christ, but he was a travel companion of the Apostle Paul. अब लूका एक ऐसा व्यक्ति नहीं जो प्रभु यीशु के साथ
हो लेने वाला शिष्य था, डायरेक्ट शिष्य बना, परंतु जहां जहां पौलुस प्रेरित गया, सेवकाई की, उसका सहकर्मी लूका बना था। He wrote the longest gospel out of the 4 gospels in the Bible. बाइबल में 4 सुसमाचार पत्रियां हैं और लूका ने जो सुसमाचार पत्री लिखी है वो सबसे लंबी सुसमाचार पत्री है। He's also written another book in the Bible called the Book of Acts. और इसी लूका ने न सिर्फ सुसमाचार पत्री लिखी, लेकिन नए नियम में एक और पुस्तक को लिखा जिसमें प्रेरितों के काम नामक एक पुस्तक पाई जाती है। This second book traces the growth of the Christian church. और जब इस पुस्तक को पढ़े तो जो मसीही या ख्रिस्ती कलीसियाएं हैं उनमें किस तरह इजाफा हुआ ये बताया गया है। And how the early disciples of Jesus Christ took the good news of their master और किताब में ये बताया गया है कि किस तरह के जो पहले के यीशु मसीह के अनुयायी थे या शिष्य थे, वो यीशु के जीवन की कहानी और दास्तान को कैसे आगे बढ़ाते गए। they began from Jerusalem, यरूशलेम नगर से उन्होंने ये प्रसार और प्रचार शुरू किया moved out to Judea, और यहूदिया प्रांत में फैले, then went to Samaria, समेरिया को गए and the message spread to the ends of the earth. और वही यीशु का संदेश समस्त पृथ्वी की ओर फैल गया। But this is all about the second book. लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं ये लूका के द्वारा लिखी गई दूसरी पुस्तक के बारे में हुआ। The first book out of which we are going to read today लेकिन वो पुस्तक जिसमें से आज विभागीय तौर पर हम पढ़ेंगे, Luke records for us the birth, the works, and the words of Jesus Christ. लूका हमारे लिए उस पुस्तक में यीशु के जन्म, यीशु के कार्य, यीशु मसीह के शब्द और बोल क्या थे उसका ब्यौरा उसमें लिखा हुआ है। He describes his literary work as an outcome of a detailed historical research and careful investigation. तो लूका वैद्य था, हमने देखा, तो उसने इस पुस्तक का जो पूरा गठन है वो स्वयं बारीकी से ऐतिहासिक तौर पर जांच टटोल और पड़ताल करने के द्वारा और बड़े ही ध्यान से और सावधानी पूर्वक उस मुद्दे को प्रस्तुत किया है। In fact, even non-Christian historians confess that Luke is one of the finest historians known to us. इतना ही क्या, जो गैर मसीही इतिहासकारक लोग हैं वो भी ये कबूल करते हैं कि लूका एक उम्दा इतिहासकारक था जिसके ऊपर पूरा विश्वास किया जा सकता है। So, what we are going to read today is an authentic and historical depiction of what exactly happened in first century Israel. तो आज जिस विभाग को पढ़ेंगे या जो पढ़ने वाले हैं वो पहले शताब्दी इज़राइल में क्या-क्या हुआ बिल्कुल उसी का एक सही रूपांतर हम पढ़ेंगे। All right, so we are going to read the first chapter of Luke. हम लूका उसके पहले अध्याय में से पढ़ेंगे। I'm going to share the portion of the Bible in document form. इस बाइबल के विभाग को डॉक्यूमेंट फॉर्म में मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। You will see that in your chat right now. If you don't have a Bible, you can open this document, but I will also try to share my screen so that you can see this as we read. इस डॉक्यूमेंट को आप आपके चैट बॉक्स में देख सकते हो। अगर आपके पास बाइबल नहीं तो उसे खोलिए और उन वचनों को आप पढ़ सकते हो। वैसे भी मैं अपने स्क्रीन को शेयर करने वाला हूँ ताकि आपको दिखाई देगा कि विभाग को पढ़ा जा रहा है। All right, so just to save time, we are sharing both English and Hindi versions, but only the Hindi version would be read by Stephen. अगर आप स्क्रीन को देख पा रहे हो तो दोनों भी विभाग आपको दिखाई देंगे, हिंदी और इंग्लिश, लेकिन समय को मद्देनजर रखते हुए मैं केवल हिंदी विभाग को पढ़ूंगा। आप कृपया जैसा मुनासिब हो
उस विभाग को आप देखिए। लुका उसका पहला अध्याय 26वें वचन से आगे। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार की अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, और तेरी कुटुंबिनी एलीशबा को के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलीशबा को नमस्कार किया। जो ही एलीशबा ने मरियम को नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला, और एलीशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। और यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? और देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कान में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दास की की दीनता पर दृष्टि की। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, और उसका नाम पवित्र है, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया, और जो अपने आप को बड़ा समझते हैं उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इसराइल को संभाल लिया, कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो इब्राहिम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। All right. Now, you probably must have noticed that everything about the conception and birth of Jesus Christ is a combination of ordinary and extraordinary events. हो सकता है आपने इस बात पर गौर फरमाया हो कि यीशु मसीहा के जो जो पैदाइश और जन्म के विषय के बारे में जितनी बातें पढ़ी गई है वो
ना सिर्फ सामान्य है परंतु असामान्य भी घटना है। His parents were ordinary, उसके माता पिता सामान्य थे but he wasn't. पर वो ये नहीं था। Jesus' birth was natural, यीशु का जन्म नैसर्गिक तौर पर एक आम घटना है, but his conception was supernatural. लेकिन उनका जन्म होना वो एक बहुत ही अलौकिक बात है। Now, for a young Jewish girl to get pregnant was ordinary, एक नौजवान यहूदी लड़की का गर्भवती होना ये एक सामान्य बात है, but to learn about your pregnancy from an angel of God लेकिन स्वर्गदूत द्वारा ये समाचार मिलना कि तुम गर्भवती होगी, ये बात and the fact that the cause of her pregnancy is the Spirit of God, और उसकी गर्भवती होना भी उसका मुख्य कारण परमेश्वर की आत्मा होगी। to be informed about the gender of the baby at a time when there was no ultrasound, और जिस घड़ी जिस वक्त की ये बात है उस वक्त तो अल्ट्रासाउंड भी नहीं था, और उस वक्त ये बताया जाना कि उसको एक पुत्र उत्पन्न होने वाला है, all of this was extraordinary. ये सारी बातें असामान्य है। To be born in the line of David was ordinary, दाऊद के कुल में जन्म लेना ये एक सामान्य बात हो सकती है, but for an unborn baby to be declared king लेकिन वो जो अब तक जन्मा भी नहीं और उसको राजा घोषित होना and to be given the throne to rule for eternity was extraordinary. और राजा होना के साथ साथ एक ऐसा उसको शासन देना और राज्य देना जिसका कभी अंत ना होगा, वो अनंत काल के लिए होगा, ये बात असामान्य है। So there's no denying the fact that unusual things are happening at the first Christmas. तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि पहले क्रिसमस के दौर में कोई असामान्य बात हो रही है, एक अचंभे वाली बात हो रही है, इसको कोई नकार नहीं सकता। The Bible makes no attempt to undermine the miraculous nature of Christ's birth. मसीहा के अननेचुरल जन्म के संदर्भ में जो बाइबल दास्तान बता रही है, बाइबल उसको छुपाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा। God's intention in doing all of this परमेश्वर का मर्जी या हेतु ये सब करने के पीछे is for us to understand that this is not some regular Jewish boy who has been born. ये सब करने के पीछे उनका मकसद ये नहीं कि कोई एक आम यहूदी लड़के का जन्म हुआ है, This is the Son of God, ये परमेश्वर का पुत्र है, the promised King of Israel. इज़राइल राष्ट्र के लिए वादा किया हुआ जो राजा है उसके बारे में है, And he is the promised savior of the whole world. और इस जगत के लिए वादा किया हुआ उद्धार करता है। Now, if you paid attention to what we read just now, you would have noticed that Mary has now been chosen as the vessel through which the Son of God, the eternal King of Israel and the Savior of the world, was to enter into human history. जो विभाग अभी अभी हमने पढ़ा, आपने इस बात पर जरा गौर फरमाया होगा कि मरियम केवल एक माध्यम बनी जिसे परमेश्वर ने चुना, जिसके द्वारा परमेश्वर का पुत्र, ये अनंत काल का इज़राइल का राजा, इस पूरे पृथ्वी का उद्धार करता, इस मानवीय इतिहास में कदम रखने वाला है। Now, who was this Mary? ये मरियम कौन थी? Mary was an unmarried young girl who lived in a city called Nazareth. नाजरत नामक एक शहर में रहने वाली एक अविवाहित लड़की, नौजवान लड़की थी ये। Nazareth was in the region of Galilee, which is in Israel. नाजरत गलील के प्रांत में जो इज़राइल राष्ट्र में आता है, वहां की ये बात है।
She most likely belonged to a poor peasant family living in a rural neighborhood. ऐसा माना जाता है कि मरियम एक गरीब दीन दरिद्र परिवार से आने वाली एक नौजवान लड़की थी जो गांव खेड़े में जो रहती थे ऐसी जगह से आने वाली। She didn't have a halo around her head. उसके सर पर कोई चमकने वाला हेलो तो नहीं था। She probably had a very typical rural look. हो सकता है गांव खेड़े में जिस तरह से लोग दिखाई देते हैं उस तरह का उसका 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 रूप होगा। Her complexion affected by spending hours next to the kitchen fire. चूल्हे के सामने बैठना, चूल्हा फूकना, आप सोच सकते हो उससे उसका रूप कैसा दिखाई देता होगा। Perhaps just a pair of clothes to wear. हो सकता है केवल 2 जोड़ी कपड़े होंगे पहनने के लिए। Perhaps no footwear owing to her poverty. गरीब थी, लगता नहीं कि उसके पास शायद पहनने के लिए चप्पल जूते भी होंगे। Her family also wouldn't have the money to own personal copies of the Hebrew Bible. और लगता नहीं कि उसके परिवार के पास इतना पैसा होगा कि अपने लिए इब्रानी भाषा में बाइबल को भी वो खरीद सके। Remember, this was a time when there was no printing press. याद रखिए ये उस वक्त की दास्तान है जब प्रिंटिंग प्रेस का इजाद भी नहीं हुआ था। So, having your own scrolls where you could read the Bible could only be afforded by those who were wealthy. तो केवल अपने अपने जो स्क्रोल्स को जिस पर बाइबल के वचनों को लिखा गया है ये खरीदना केवल धनी लोगों के लिए धनवान लोगों के लिए ही मुनासिब हुआ करता। Her only exposure to the scriptures would be her weekly visit to the synagogue. तो परमेश्वर के वचनों के बारे में जानकारी मालूमात उसे शायद केवल जो साप्ताहिक तौर पर उनको आराधनालय में जाना होता था उसी वक्त उसे सुनाई देता होगा। It's there where she would hear the Hebrew Bible being read and explained. और वो जगह होगी जहां पर उसे इब्रानी बाइबल को खोलकर जो पढ़ाया जा रहा है वो सुनने में मिलता होगा। But that doesn't mean that she was biblically illiterate. हाँ, लेकिन फिर इसका मतलब ये भी नहीं कि बाइबल में क्या है इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। The song that she sings at the end of the section that we just read अभी अभी जो विभाग में हमने जो मैंने पढ़ा उसके अंत के जो शब्द थे या बोल थे is really a testimony of how well she knows her Bible. उससे ये साबित होता है कि कितनी अद्भुत रीति से उसको अपने बाइबल की मालूमात थी। Another thing we know about her is her genealogy. और एक बात विशेष तौर पर जो हमें जानकारी प्राप्त होती है ये है कि उनके वंशावली क्या थी। Luke records for us that she comes from the line of David. लूका हमें प्रस्तुत करता है बताता है कि मरियम दाऊद के कुल की तरफ से आ रही है। She is told to have been engaged to a man named Joseph. ये बताया गया है कि मरियम की यूसुफ के साथ मंगनी हुई थी। Joseph was a carpenter by profession. यूसुफ व्यवसायिक तौर पर एक सुतार था। And he also came from the line of David. और यूसुफ भी दाऊद के वंशावली से आया है। Now, girls in those days would get engaged as soon as they reached puberty. जो लड़कियां हैं जैसे ही शादी की उम्र की हो जाती है उनका मंगनी किया जाता था। So Mary must be around 12 to 14 years old when these events happened to her. और जिस तरह की उस वक्त की प्रथा थी हो सकता है मेरी लगभग 12, 13, 14 साल की होगी जब उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी। Now, the kind of engagement in Jewish culture in those days is different from the kind of engagement we have before our wedding. अब याद रखिए यहूदी रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार जिस तरह का मंगनी का जो कार्यक्रम उनके यहाँ होता था वो आज के युग में जो हम मंगनी का कार्यक्रम रखते हैं उससे बिल्कुल जुदा उससे बिल्कुल हटकर था। Engagement in those days was a legally binding commitment to marriage confirmed by an oath. मंगनी का जो प्रथा है या उसका चलन वो एक कानूनी तौर पर वचनबद्ध ऐसा संबंध था जो
शादी या विवाह के तौर पर उसे आखिर नतीजा मिलता था। In fact, those who were engaged were already considered to be husband and wife. इतना ही नहीं, ये माना जाता था कि अगर किसी की मंगनी हुई है तो उनको लगभग पति और पत्नी का दर्जा दिया गया है, Although they did not live together, बावजूद इसके कि वो कभी भी विवाह संबंध से पहले एक साथ एक घर में कभी ना रहे हो। nor would have physical relationships with each other इतना ही क्या, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी हुआ नहीं होगा until the official marriage ceremony. जब तक कि कानूनी तौर पर उनकी विवाह या शादी हुई हो। So binding was the engagement that to break it, one would have to file for divorce. अब ये जो मंगनी का कार्यक्रम है और मंगनी की बात है, वो इतनी वचनबद्ध थी कि अगर उस मंगनी को तोड़ना भी होता तो उनको डिवोर्स फाइल करना पड़ता। Now, when the angel announced to Mary that she would get pregnant, she was a virgin. जब स्वर्गदूत ने घोषणा की कि वो गर्भवती होने वाली है, उस क्षण में या उस घड़ी पर मरियम कुंवारी ही थी। But that does not mean that she was a virgin all her life. लेकिन फिर इसका मतलब ये भी नहीं कि अपने पूरे जीवन काल में मरियम कुंवारी ही रही, She was ultimately married to a man. क्योंकि आखिरकार या बाद में उसका विवाह सच में एक पुरुष के साथ हुआ है And they did what every married couple does. और उन्होंने वही किया जो हर एक वैवाहिक जोड़ा करता है। The Bible records that Jesus had brothers and sisters बाइबल में ये रिकॉर्ड है कि यीशु के अपने सगे भाई बहन थे, who were obviously the children of Joseph and Mary. तो वास्तविक है ना कि वे मरियम और यूसुफ के पुत्र थे। The Bible records that she was a virgin only until Jesus was born. बाइबल ये रिकॉर्ड बताता है कि मरियम जब तक कि यीशु का जन्म हुआ तब तक कुंवारी ही थी All her future pregnancies were natural conceptions. और उसके आगे के जितने गर्भवती जब भी वो हुई वो एक नैसर्गिक तौर पर होने वाली क्रिया थी। So, a plain reading of the Bible totally debunks the idea that Mary is a perpetual virgin. बाइबल का सीधे तौर पर आप पढ़ोगे भी तो उससे कई प्रमाण मिल जाएंगे कि मरियम पूरे जीवन काल में केवल कुंवारी ही जी या हमेशा के लिए कुंवारी ही ठहरी, इस बात को भी वो नकार देता है। When we see the record of her later years in the Bible, जब हम उसके बारे में बाइबल आगे आगे उसके जीवन के काल में क्या क्या हुआ इसका रिकॉर्ड पढ़े, she appears to have kept a really low profile. तो ज्यादा बढ़ चढ़कर उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। इससे ये भी पता चलता है कि मरियम ने अपने आप को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया था। She was a simple woman, एक बहुत ही सर्वसामान्य महिला थी married to a simple carpenter, जो एक सर्वसामान्य सुतार के साथ उसका विवाह हुआ and she was most likely widowed very early in her life. और हो सकता है कि अपने जीवन काल में बहुत पहले ही वो विडो हुई। If you saw her, you would never believe that she gave birth to the Son of God. मेरा दावा है अगर आप उसे देखते तो आप कभी भी ये भरोसा नहीं कर पाते कि उसने परमेश्वर के पुत्र को जन्मा है। To such a common woman of a lowly and humble background, अब एक ऐसे सामान्य महिला जो दीन और नम्र पार्श्वभूमि से आती है, God sends an angel from heaven. ऐसे के पास परमेश्वर स्वर्ग से एक दूत भेजते हैं। The angel is named Gabriel. वचनों में बताया गया है इस दूत का नाम जिब्राइल था। The Bible reveals that there are billions and billions of angels that God created. बाइबल खुलासा करता है कि परमेश्वर ने अरबों खरबों स्वर्गदूतों को निर्माण किया, But we are told the names of only two of them. लेकिन केवल दो स्वर्गदूतों का नाम हमें बताया गया है। One is Michael, who is called the archangel,
एक है माइकल जिसे सबसे ऊंचा दूत कहा जाता है। And then there's Gabriel from this incident. और फिर इस विभाग में जो हमने पढ़ा दूत के बारे में, उस दूत का नाम जिब्राइल था। There's also, of course, Lucifer, who is called Satan, and he's the fallen angel. और एक दूत के का नाम हमें पता है, वो है लूसीफर, बाइबल में बताया गया है, जिसको शैतान भी कहा जाता है, और वो परमेश्वर की उपस्थिति से खदेड़ दिया गया एक दूत ठहरा। Now, during Old Testament times, God sometimes sent angels to communicate his message to his people. अ, पुराने नियम के दौर में परमेश्वर ने जब उनको अपना संदेश लोगों को पहुंचाना होता था, तो परमेश्वर दूत को भेजते थे। But that was not a common phenomenon. लेकिन कोई ये एक आम घटना या प्रक्रिया नहीं थी। In fact, this particular visit by Gabriel was after a long period of prophetic silence. इतना ही क्या, जब इस घटना में जिब्राइल प्रस्तुत होता है मरियम के सामने, ये तब हुआ जब एक लंबे अरसे तक भविष्यवाणी या परमेश्वर की मनुष्य के साथ बातचीत एक लंबे अरसे तक खामोश थी। Moreover, the nature of his visit is remarkable when you see the kind of things he spoke to Mary. और जब हम उन बातों को पढ़ते हैं कि जिब्राइल ने मरियम के साथ क्या-क्या बात की, वो तो उसका वहां पर आना और मुलाकात ये और भी विशेष और खास हो जाता है। His message and the fulfillment of its contents would change Mary's entire future. जिब्राइल या इस दूत के द्वारा जो संदेश और संदेश का पूरा होना, ये सारी बातें मरियम के जीवन को या आगे के जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाला था। It was going to change the future of the nation Israel. इतना ही क्या, इज़राइल राष्ट्र के भविष्य को तक ये बदल देने वाला था। It was going to change the future of the whole world. उतना ही क्या, पूरे संसार के भविष्य को ये बदलने वाला था। It would usher in a new era in world history. जगत के इतिहास में एक नया दौर शुरू होने वाला था। So let's look at the content of Gabriel's message. जिब्राइल का संदेश क्या है, इस बारे में हम अब जरा देखेंगे। What was he commissioned to deliver to Mary? उसे क्या आदेश दिया गया था कि उसे जाकर मरियम को वो बताना है। The first unusual aspect of Gabriel's visit was the way he greeted Mary. सर्वप्रथम जो असामान्य बात मरियम के और उसके बीच की जो मुलाकात थी, वो जो असामान्य बात है, वो है किस तरह से मरियम को वो नमस्कार कहता है। He said, "Greetings, favored one, or highly favored one. The Lord is with you." और उसने क्या कहा कि नमस्कार तुझे, क्योंकि परमेश्वर के निगाह में तूने फेवर पाया है। A common village teenager like Mary would have never heard such a greeting in her life. एक सामान्य, एक आम गांव खेड़े की कुंवारी लड़की कभी भी अपने कानों में इस तरह का नमस्कार नहीं सुनी होगी। So it was obvious that she was perplexed, totally confused as to what manner of greeting this is. तो स्वाभाविक है, इस तरह का नमस्कार सुनकर उसे भी अचंभा हुआ होगा। शायद उसके मन में गड़बड़ी आई होगी कि ये किस तरह का नमस्कार मुझे बोला जा रहा है। So Gabriel comforts her and says, "Don't worry, Mary." तब जिब्राइल उसको सांत्वना देता है, उसको कहता है कि भयभीत मत हो, मत डर। The purpose of my visit is not to scare you. मेरा तुझे आकर मिलना तुझे डराने के लिए नहीं है, but to tell you how blessed you are. लेकिन तुझे ये बताना है कि तू कितनी धन्य हुई है। You have found favor with God. इसलिए क्योंकि तूने परमेश्वर की निगाह में फेवर पाया है। The Lord has been gracious to you. क्योंकि परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह दिखाते हैं। Mary is not the source of grace. याद रखिए, मरियम अनुग्रह की दाता या स्रोत नहीं, She is a recipient of God's grace. लेकिन
परमेश्वर के अनुग्रह को पाने वाली वो महिला थी। Now, how did she receive God's grace or favor from God? परमेश्वर से अनुग्रह किस तरह से किस मुताबिक उसने पाया? She was chosen for probably the greatest task that any mortal could receive from God. किसी भी मरणहार व्यक्ति को कोई एक अहम काम दिया जाए, उससे भी बढ़कर काम इस मरियम को करने के लिए चुना गया था। She was chosen to bear and raise Jesus Christ. यीशु को जन्माना और यीशु का पालन पोषण करना, उसको बढ़ाना, उस कार्य के लिए मरियम को चुना गया। What a privilege for a little village girl. क्या अद्भुत सौभाग्य है एक गांव की लड़की के लिए। Mary wouldn't have to worry about what to name her son. मेरी को इस बात की भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी थी कि उसे अपने बेटे का क्या नाम देना है, Because God had already decided about that. क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही तय कर रखा था कि क्या नाम होगा। The angel told her that he will be called Jesus. स्वर्गदूत ने मरियम को पहले ही घोषणा कर दी कि जब पुत्र जन्मेगा तो पुत्र का क्या नाम होगा, यीशु रखना, ये कहा गया। Now, Jesus is the English form of the Hebrew name Yeshua. जीसस या यीशु हम जो कहते हैं वो इब्रानी शब्द यशुआ से आता है। Now, Jewish parents back in those days, it was a very common name that parents gave their sons. ये एक आम नाम हुआ करता था जो यहूदी माँ बाप अपने बच्चों को दिया करते थे। The name means Jehovah saves. इस नाम का अर्थ है यहोवा जो बचाता है। Jehovah referring to the name of the one true God of the Bible. यहोवा वो नाम जो सच्चे बाइबल के परमेश्वर का नाम है। Now, the reason why this particular child will be called Jesus or Yeshua was given to Joseph when an angel visited him to inform about Mary's virgin conception. अब यीशु ये नाम बच्चे का रखना है, उसका कारण क्या है? वो कारण दूत ने यूसुफ को बताया तब जब दूत को ये बताना था यूसुफ को कि मरियम जो कुंवारी है वो गर्भवती है। The angel told Joseph that Mary will bear a son and you will call him Jesus. दूत ने यूसुफ को जाकर क्या बताया कि मरियम पुत्र जन्माएगी और तुम उसका नाम यीशु रखना। Which, as I said, means Jehovah saves. जैसे मैंने पहले बताया, यीशु इस नाम का अर्थ है यहोवा बचाता है। The reason why you should call this baby Jesus is because he will save his people from their sins. और वजह क्या है उसे यीशु नाम रखने की? क्योंकि ये वही है जो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार दिलाएगा। Listen to it again. He will be called Jehovah saves. उसे यहोवा बचाता है या उद्धार देता है, ये नाम दिया गया है। Because he will save. इसलिए क्योंकि वो बचाने वाला है। If Jehovah or God saves, अगर यहोवा बचाता है and this baby saves, और ये बालक बचाता है, then what does that make the baby? तो ये बालक क्या हुआ? This baby is God. ये बालक परमेश्वर है। The angel told Mary that her baby will be great. दूत ने तो मरियम को बताया कि ये बच्चा महान होगा। He will be called the Son of the Most High. और इस बालक को सर्व प्रधान का या परम प्रधान का पुत्र वो कहलाया जाएगा। Yes, people will know him as your son and the carpenter's son. हाँ जी हाँ, बिल्कुल लोग जानेंगे कि वो तेरा पुत्र है, एक सुतार का पुत्र है। But he will actually be the Son of God. बट वास्तविक तौर पर या असलियत में वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। Mary was also told that your son will sit on David's throne.
इतना ही नहीं, मरियम को ये तक बताया गया था कि तेरा पुत्र दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा। Now, David's throne was currently unoccupied. अब जब ये सब दास्तान चल रही थी तो दाऊद का जो सिंहासन था उस पर कोई बैठा हुआ नहीं था। It had been many years since anyone from the line of David became king. क्योंकि ऐसे बहुत साल गुजर गए थे कि कोई दाऊद के कुल से आकर उस राजगद्दी या सिंहासन पर बैठा हो। But God had made some promises to David. लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को कई सारे वादे किए थे। He had promised David that Israel's Messiah would come from his descendants. वादा ये कि इज़राइल का जो मसीहा है वो दाऊद के कुल से आएगा। David was also promised that the kingdom of this particular descendant will be an everlasting kingdom. दाऊद को ये तक वादा दिया गया था परमेश्वर द्वारा कि ये जो मसीहा आने वाला है उसका राज्य अनंत काल तक रहने वाला है No one would be able to overthrow him. और ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उसके राज्य को छीन सके। He will be king forever. वही राजा हमेशा के लिए अनंत काल के लिए बना रहेगा। So, what the angel is effectively saying is that the time has come now for God to fulfill his covenant with David. तो इस पूरी दास्तान में दूत असल में क्या कह रहा है कि अब वो घड़ी आ चुकी है, अब वो वक्त आ गया है कि परमेश्वर ने जो वादा किया, जो वाचा बांधी है दाऊद के साथ, वो पूरी करे। And Mary, your son is going to fulfill all of that. हे मरियम, तेरा पुत्र वो अब परिपूर्ण करेगा। Now, just think about this. This is a lot of information for Mary to process in her mind. अब सोचिए, ये सारी बातें मरियम को सुनने को मिल रही है और ये सारी बातें अपने मन में प्रोसेस करना भी बहुत बड़ी बात है। But the one thing that stumps her the most has nothing to do with the angel or the Messiah or incarnation or David or the nation. लेकिन ये सारी बातें कि दूत का आना, मसीहा, परमेश्वर का देहधारी होना, दाऊद, इज़राइल, इन ये सब बातों के बजाय वो एक बात थी जिसके वजह से वो हक्का-बक्का रह गई। What bothers her the most is her current relationship status. उसको जो बात परेशान किए जा रही थी, वो ये थी कि उसका संबंधित का जो रिश्ता या स्टेटस था उस वक्त पर वो क्या था और कैसा था। Mary knows her biology. मैरी को अपना जीव शास्त्र पता है। She knows that babies don't come from the sky. उसको ये मालूम है कि बच्चे कोई आसमान से नहीं टपकते। She knows that she is unmarried. उसको ये भले भांति मालूम है कि वो अविवाहित है। She has never and will never indulge in premarital relations. उसने न तो इससे पहले और कभी भी विवाह से पहले किसी व्यक्ति के साथ संबंध रखा है या रखेगी। So how is it possible that I would conceive? तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं गर्भवती होगी। Now her concern is absolutely genuine. उसका इस रीति से या इस विषय के बारे में सोचना, गंभीरता से सोचना सचमुच जेन्युइन है। There is no way possible. I mean, there is no way that this was possible by natural means. क्योंकि नैसर्गिक तौर पर ये मुमकिन होना बिल्कुल गवारा नहीं हो सकता। There can only be a supernatural explanation for this. पर एक अलौकिक तौर पर ये होना केवल यही बात मुमकिन कर सकता है। That's exactly what the angel tells her. और दूत केवल यही बात उसको पेश करता है। Mary, you will conceive without any human intervention. कि हे मरियम, तू गर्भवती होगी, पुत्र जन्माएगी और इसमें किसी भी पुरुष या मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं होगा। It's the Holy Spirit who will intervene. क्योंकि
परमेश्वर की पवित्र आत्मा अब इसमें मध्यस्थ करेगी, God's immense power will take control over your womb. क्योंकि परमेश्वर की महान सामर्थ और बल तेरे गर्भ पर अपना कार्य करेगी, The natural order will be overshadowed by the supernatural. और जो नैसर्गिक चलन है वो अलौकिक चलन के द्वारा छायाबंद होगा। No one has ever conceived this way before, and no one will ever after. किसी ने भी इससे पहले इस तरह की गर्भवती होना नहीं हुआ होगा और न ही आगे कभी कोई होने वाला। This will be a once in all of eternity event that a virgin shall conceive and bear a son. अनंत काल के इस टाइमलाइन पर ये केवल एक बार होने वाली घटना है और ये होकर रहेगी। But this is not the only miracle that is happening right now, Mary. लेकिन मरियम केवल यही एक लौता अचंभा का या फिर चमत्कारिक बात नहीं हो रही है। Remember, you have a relative whose name is Elizabeth. तुझे याद ही होगा, तेरी एक कुटुंबिनी है जिसका नाम यलीशबा है। She is much older than you. वो तुझसे ज्यादा वय की है। She wanted a baby for a long time. और वो भी बांझ थी, उसे भी पुत्र की अपेक्षा थी। But she was barren and she could not conceive. जैसे मैंने बोला, वो बांझ थी और वो गर्भवती नहीं हो पा रही थी। She is also pregnant now. लेकिन अब वो भी गर्भवती है। Even though she's past her childbearing age. वो किसी पुत्र को जन्मा सके ऐसी उम्र से भले ही उसकी वो उम्र बीत चुकी हो, फिर भी अब वो गर्भवती है। Mary, do not let biology confuse you. तो मरियम, तेरा जो जीव शास्त्र का ज्ञान है उससे तू गड़बड़ी में मत पड़। God rules over biology. क्योंकि किसी भी जीव शास्त्र से बढ़कर परमेश्वर है, परमेश्वर उस बात पर राज्य करता है। God rules over science. क्योंकि परमेश्वर शास्त्र के ऊपर भी अपना हक या अपना उस पर राज कर सकते हैं। God can do anything. परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। Nothing is impossible for him. और परमेश्वर के लिए कोई भी बात नामुमकिन नहीं। Now, how would you react to such an announcement? आप सोचिए, अगर आपके साथ ऐसी कोई घोषणा करने आपके पास आए, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? How would you respond if the birth of your child involved an angelic visit? आपके बच्चे के जन्म के लिए कोई दूत आपके पास आ रहा है और उसकी घोषणा कर रहा है, आप क्या प्रतिक्रिया दिखाओगे? What would your response be if you were involved in a virgin conception? आप अगर कुंवारीपन में गर्भवती होंगी, ये अनाउंसमेंट हो रहा है दूतों के द्वारा, आप क्या प्रतिक्रिया दिखाओगे? How would you respond if you realized that your baby is actually fulfilling Old Testament prophecies? और जब आप ये जानोगे कि आपके द्वारा जो अब पुत्र पैदा होने वाला है, वो असल में पुराने नियम के भविष्यवाणियों का परिपूर्ण होने वाला है, तो इस बात के लिए आप क्या प्रतिक्रिया दिखाओगे? Let's see how Mary responded. तो आइए देखते हैं मरियम ने किस तरह से प्रतिक्रिया दिखाई। Mary's response comes in 3 stages. मरियम का जो जवाब है, प्रतिक्रिया है, एक 3 तरीके से आता है। Stage 1 is her immediate acceptance of what the angel said. पहला स्टेज ये है कि उसने जो उसको दूत ने कहा, उसकी तरफ उसने तुरंत मान लिया उस बात को। These are her exact words. उसके शब्द इस तरह से है, Behold, the bond slave of the Lord, may it be done to me according to your word. उसके शब्द है, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। I may not understand everything you said. तो वो क्या कह रही है कि हो सकता है तूने जो भी बोला पूरी तरह से मुझे समझ में ना आया हो, But whatever the Lord has said and chosen to accomplish through me,
लेकिन जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा है और चाहत रखी है कि मेरे द्वारा वो उसे हासिल करे, I submit to him. तो मैं उनकी तरफ अपने आप को समर्पित करती हूँ। I have no say in this. मैं इस बात में अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगी। I am the Lord's bond slave. वो ये कहती है कि मैं परमेश्वर की दासी हूँ। The word bond slave is a very strong term. अब ये जो दासी शब्द है, ये बहुत ही कड़े शब्द हुए। Mary is not saying, Lord, I am your servant. मरियम यहाँ ये नहीं कह रही है कि मैं तेरी गुलाम हूँ परमेश्वर, या मैं तेरी सेवक हूँ। She's saying, Lord, I am your slave. वो कह रही है मैं तेरी दासी हूँ, You own me. आपका हक है मुझ पर, I am at your feet, ready for your service. मैं तेरे कदम पर बैठी हूँ और तू जो सेवकाई करने बोलेगा मैं करूंगी। To do anything that you see fit. जो आपको मंजूर हो वो कहिए, मैं वो करूंगी। The second stage of her response is her visit to her relative Elizabeth, about whom we just heard that she was also pregnant. अब ये दूसरा पड़ाव उसके प्रतिक्रिया का ये था कि जब वो एलीशबा, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की, एलीशबा को मिलने के लिए गई। Now, the Bible does not reveal to us exactly why Mary went to Elizabeth. बाइबल इस बात पे खुलासा नहीं कर रहा है कि वो क्या वजह थी जो मैरी एलीशबा को मिलने के लिए गई। Elizabeth's house was over 150 kilometers away from Mary's. एलीशबा का घर लगभग 150 किलोमीटर मरियम जहां रहती थी उतनी दूरी पर था। And remember, this is a time when there's neither any public nor private transport available with Mary. ये भी याद रखिए, ये वो घड़ी है जब जिस तरह का ट्रांसपोर्टेशन आज के युग में हम देखते हैं, उस तरह का ट्रांसपोर्टेशन उन दिनों में नहीं हुआ करता था। It would have easily taken her a week or two to reach Elizabeth's house. तो हम ये सोच सकते हैं कि लगभग हफ्ता डेढ़ 2 हफ्ता लगा होगा उसे एलीशबा के घर में पहुंचने के लिए। Yet the Bible records that Mary left Galilee in a hurry for Judah, where Elizabeth was living. लेकिन बाइबल ये बात का खुलासा जरूर कर रहा है कि मरियम तुरंत या फिर वो तत्पर थी एलीशबा के घर पे जाने के लिए, यहूदा में जहां पर एलीशबा रहती थी। Now, most likely, Mary thought that Elizabeth would be the only person who could understand what was happening to her. तो ऐसा हो सकता है मेरी को ये एहसास हुआ हो या महसूस हुआ हो कि इस पूरी दुनिया में केवल एलीशबा ही वो महिला हो सकती है जिसको समझ में आए कि मेरे साथ अक्सर असल में हो क्या रहा है। Just think about this. How would Mary explain to the people in her town how she got pregnant? आप इस बात पर गौर फरमाइए, मेरी किस मुंह से या किस तरह से उसके आजू बाजू के अड़ोस पड़ोस के लोगों को ये समझाती बैठेगी कि वो कैसे गर्भवती बनी। Who would believe her? कौन उस पर विश्वास करेगा। But Elizabeth was different लेकिन एलीशबा वो अलग थी, because she also had experienced a biological miracle. वो इसलिए क्योंकि उसने भी एक अनैसर्गिक बात को या फिर चमत्कार को अपने खुद के जीवन में अनुभव किया। So Mary embarks on this long journey to meet her relative. तो हम ये देखते हैं बाइबल से कि मैरी एक लंबे सफर तय किया उसने ताकि वो एलीशबा को मिले। Now, Elizabeth has no idea that her teenage relative is also pregnant. इस दौर में एलीशबा को कोई ज्ञान नहीं था कि उसकी एक कुटुंबनी या उसकी एक रिश्तेदार जो एक नौजवान कुंवारी लड़की है वो भी गर्भवती है। But something remarkable happens when the two meet. लेकिन जब ये दोनों महिलाएं मिली तो एक बहुत ही अद्भुत बात हुई। When Mary entered Elizabeth's house and greeted her, "Hi, Elizabeth," जब मैरी एलीशबा के घर पे पहुंची और एलीशबा को उसने नमस्कार कहा होगा, it was not just Elizabeth who heard the greeting, तो केवल एलीशबा ने उसके नमस्कार को नहीं सुना होगा, but even the baby inside of Elizabeth. लेकिन एलीशबा के कोख में पनप रहे
बच्चे ने भी उस नमस्कार को सुना। The Bible records that the baby jumped inside the womb. बाइबल में इस बात का रिकॉर्ड है और खुलासा है कि जब वो नमस्कार सुना तो एलीशबा के कोख में पल रहे बच्चे ने छलांग मारी। Now, we know that babies inside the womb, they kick and they turn. हमें मालूम है कि एक कोख में जब शिशु होता है तो वो लात मारता है, घूमता है Babies respond to physical stimulus. और जो शारीरिक तौर पर हलचल होती है तो उसकी तरफ भी वो प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं बच्चे। Like if you press the mother's belly, जैसे कि अगर आप माँ के पेट पर अगर हाथ रखो the baby may give you a return punch. तो बच्चा आपको जवाबी तौर पर मुक्का मारेगा। But this unborn baby inside Elizabeth responded to an audio stimulus from Mary's voice. लेकिन ये अभी तक जो जन्मा नहीं एलीशबा में पनप रहे बच्चा केवल ध्वनि के को सुनकर अपनी प्रतिक्रिया दिखा रहा है। Now we know that the baby inside Elizabeth is John the Baptist. हमें आगे की दास्तान पता है। ये एलीशबा के कोख में जो बच्चा है वो यूहन्ना बपतिस्मा है। John the Baptist is called as the front runner of Jesus Christ. यूहन्ना बपतिस्मा यीशु मसीह के आगे चलने वाला एक भविष्यवक्ता था। He was given a unique ministry where he would make God's people ready to receive Jesus Christ. और इस यूहन्ना बपतिस्मा को एक परमेश्वर द्वारा ऐसी आज्ञा मिली थी और ऐसी सेवा मिली थी जिसमें वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार वे करे इसके लिए वो तैयार कर सके। He was chosen to tell people who God's chosen Messiah is. उसे इसलिए चुना गया था ताकि वो लोगों को समझाए, सिखाए, तैयार करे कि यीशु कौन है। So it's pretty obvious that John was meant to be excited at the sight of the Messiah. तो ये स्वाभाविक बात है कि मसीहा के साथ मुलाकात हो रही है, इस बात से ही यूहन्ना उछला होगा। And it seems as if he began to do his God appointed task right from the womb. और ये ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने जो उसको टास्क दिया है, जो कार्य निभाने को कहा है, वो माँ की कोख से ही वो करने की तैयारी में था। He hears the voice of Jesus's mother वो यीशु के माँ की आवाज को सुनता है and then pushes from the inside. और अपनी माँ की कोख से वो मानो पुश कर रहा है या अपनी हलचल दिखा रहा है। Perhaps wanting to shout out, "That's the man I have come to reveal." हो सकता है केवल ये चिल्लाने के लिए, ये बताने के लिए कि यही वो है जिसके बारे में मैं आप लोगों को खुलासा करना चाहता हूँ। Little John is probably not concerned about the visiting mother. ये जो छोटा बालक या छोटा शिशु यूहन्ना उसकी माँ के बारे में ज्यादा कंसर्न नहीं दिखा रहा। His interest is in the baby that she's carrying. लेकिन उसका इंटरेस्ट या उसकी रुचि जिस बच्चे को, जिस बालक को मरियम अपने कोख में लिए घूम रही है उसकी तरफ थी। Even though Mary was intending to inform Elizabeth about all that happened to her, God, through his Spirit, already informed Elizabeth about all of that. हो सकता है मरियम बताने गई होगी एलीशबा को कि उसके साथ क्या वाकयात हुई, लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने पहले ही एलीशबा को बताया था कि क्या हो रहा है। This is how Elizabeth welcomes Mary. इस रीति से एलीशबा मरियम को नमस्कार कहती है। Blessed are you among women. कि धन्य है तू जो महिलाओं में या स्त्रियों में है। And blessed is the fruit of your womb. और तेरे कोख में पनप रहे बच्चे को धन्य है। Why did the mother of my Lord have to come to me? मेरे प्रभु के माता मेरे पास क्यों आई? I should be the one visiting you. मुझे तेरे पास आना चाहिए। Look what has happened when you greeted me. देख जब तूने मुझे नमस्कार कहा तो मेरे साथ क्या हुआ। My baby leaped with joy. क्योंकि
तूने जैसे ही नमस्कार कहा तो मेरा बालक मेरे कोख में आनंद से उछला। You are truly blessed, Mary. मेरी सचमुच तू धन्य है। Why? क्यों? Because you believed that there would be a fulfillment of what had been spoken to you by the Lord. क्योंकि तूने उस बात पर अपना विश्वास किया जो परमेश्वर प्रभु ने तेरे सामने खुलासा किया और तुझे बताया। The angel had told Mary that you are blessed because God has chosen to favor you. स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था कि तू इसलिए धन्य है क्योंकि परमेश्वर परम प्रधान ने तुझे चुना है, तुझ पर दया की है। Elizabeth calls Mary blessed because you believed. और एलिशबा मरियम को इसलिए धन्य कहती है क्योंकि मरियम ने विश्वास किया। Now, when Mary hears these words from Elizabeth's mouth, जब मरियम इन शब्दों को जो एलिशबा कह रही है और एलिशबा के मुंह से निकल रहे हैं उसे सुना, she bursts out into a song of praise. तो वो एक 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 स्तुति गीत के साथ अपनी खुशी को जाहिर करती है। And that's the third and final stage of Mary's response. और मेरी की प्रतिक्रिया इन घटनाओं की तरफ क्या थी, इसका तीसरा पड़ाव ये है। She begins to worship God. वो परमेश्वर की आराधना स्तुति करना शुरू करती है। This song that Mary sings is popularly known as Mary's Magnificat. ये जो गीत मरियम गा रही है या गाएगी, उसे मरियम द्वारा स्तुति या बड़ाई ये कहा जाता है। It's her song of praise and exaltation of God. ये उसके गीत है, उसकी बोल में, जिससे वो परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर को बढ़ावा देती है। It's her worship of the one true God who has dealt so graciously with her. ये उसका एक आराधना करने का तरीका है उस एक में सच्चे परमेश्वर के लिए, जिसने उसको इतनी दया दिखाकर चुना और उसको अनुग्रह दिखाया। So gracious that all future generations will call her blessed. इतना अनुग्रह दिखाया है कि आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं मरियम को धन्य कहेगी। The song is not about how great she is. इस गीत को अगर पढ़े तो इससे कहीं पर यह अनुमान नहीं लगता कि वहां पर उसकी बड़ाई हो रही है या मरियम की बड़ाई की जा रही है। The song is about how great God is. परंतु ये गीत असल में परमेश्वर कितना महान है उस बात को बयान किया जाता है। Her worship consists of two basic components. उसकी आराधना में दो मुख्य बातें शामिल है। It's a remembrance of who God is. पहले ये कि परमेश्वर कौन है, इस बात को वो याद कर रही है। That is his attributes. यानी कि उनकी गुणवत्ता, उनकी अच्छाइयां। The second component is her remembrance of what God does. और दूसरा जो भाग है उसकी आराधना और स्तुति का, उसमें परमेश्वर क्या करता है वो शामिल है। The Magnificat indicates the depth of Mary's spiritual understanding. इस स्तुति गीत में, इस बढ़ावा देने या बड़ाई करने वाले गीत से पता चलता है कि मरियम परमेश्वर के बारे में, वचन के बारे में कितनी बात सोचती है। She may be young and not well educated. वो नौजवान होगी और इतनी ज्यादा शिक्षित भी ना हो। But her song reveals her great knowledge of the Hebrew scriptures. लेकिन उसके गीत के द्वारा, उसके बोल के द्वारा ये बात प्रमाणित होता है कि इब्रानी शास्त्रों के बारे में उसकी कितनी जानकारी थी, उसे कितना ये मालूम था। Because she makes allusions to so many different portions of the Hebrew Bible. क्योंकि इब्रानी बाइबल के ही कितने भिन्न भिन्न भागों के बारे में वो उल्लेख करती है अपने गीतों में। She is able to understand now that whatever God had been speaking in the past is finally coming to its fulfillment. और वो अब ये समझ पा रही है कि जो कुछ परमेश्वर ने अतीत में कहा किया वो अब पूरी उसके जीवन काल में परिपूर्ण हो रहा है।
It reveals her self-awareness of being an immensely blessed girl who doesn't deserve such favor from God. और इस गीत के द्वारा ये भी वो प्रमाणित कर रही है कि परमेश्वर के अनुग्रह उस पर हुआ है और इसमें उसका कोई भी योगदान नहीं। She is explaining her belief in that God who is truthful, who is faithful, and who is a promise keeping God. वो इस गीत के माध्यम से विश्वास जाहिर करती है उस परमेश्वर पर जिसने जो अतीत में विश्वास योग्य रहा है, जो बोला है वो करता है और वो आगे करने वाला है। Folks, Mary's song is the model for what our approach to Christmas should be. तो मित्रों, मेरी का जो गीत है वो हमारे लिए एक आदर्श बनना चाहिए जब हम इस क्रिसमस के पर्व को मनाते हैं। Her joy is not in the gifts. उसका आनंद जो भेंट मिली, गिफ्ट्स मिले, उसमें नहीं था। Her joy is not in the festivities. और फिर आमतौर पर त्योहारों में जो कार्य करते हैं लोग, उन बातों में नहीं था। Her joy is in God. परंतु उसका आनंद परमेश्वर में है। Her ultimate satisfaction is in God, her Savior. उसका परम संतृप्ति केवल परमेश्वर जो उसका उद्धार करता है उसमें वो जताती है। The true spirit of Christmas is a spirit of humble submission and rejoicing. तो क्रिसमस का जो असल मनाना है वो दीन और नम्र होकर परमेश्वर की तरफ समर्पित होकर आनंद के साथ परमेश्वर के पास जाने के द्वारा होता है। Rejoicing in the fact that God has sent his son to rescue us from our sins. इस बात में आनंद मनाना कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि वो हमें पाप की चुंगल में से बाहर छुड़ा ले। We will conclude very shortly now. There's always a tendency to ascribe to Mary more honor than what the Bible allows. अब आमतौर पर ये हो सकता है कि हम मरियम को इतना ऊंचा दर्जा दे दे कि जिसकी अनुमति बाइबल खुद भी नहीं देता है। Even during Jesus's ministry, when Jesus was teaching at a particular place, someone from the crowd called out to Jesus and said, "Blessed is the womb that bore you and the breasts at which you nursed." यीशु जब अपनी सेवकाई कर रहे थे, एक ऐसे घटना भी हुई थी जब सेवकाई के दौरान कि कोई आया और यीशु को देखते हुए कहा कि धन्य है वो कोख जिसमें तू जन्मा और वे स्तन जिसमें से तूने चूसा है। But Jesus corrects that lady. लेकिन जिस महिला ने ये घोषणा की, ये बात उसको बोली, उसको करेक्ट करते हुए उसने कहा, Jesus said, on the contrary, blessed are those who hear the word of God and observe it. उसको करेक्ट किया और कहा कि धन्य है वे जो परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के शब्दों को सुनते हैं, न सिर्फ सुनते हैं परंतु उसका अनुकरण या पालन भी करते हैं। The blessing is not in giving birth to the son. आशीषमान बात ये नहीं कि एक बच्चे को जन्म देना हुआ। The blessing is in believing in the son. लेकिन असल में आशीषमान बात वो है जिसमें आप जो जन्माया हुआ बालक है उस पर विश्वास रखो। If God really intended for us to acknowledge Mary as some divine or authoritative figure, then he would have plainly revealed it to us. अगर परमेश्वर की ही मर्जी इस बात में होती कि मरियम एक अधिकारी और एक ऊंची महिला करके जानी जाए, बहुत सम्मानजनक पवित्र महिला करके जानी जाए, तो बाइबल में इस बात के बारे में पहले ही बताया गया होता, लिखा गया होता कि उसको वो दर्जा दो। But a plain reading of the Bible
does not indicate anywhere that Mary had any authoritative role in the church. लेकिन आप केवल सामान्य तौर पर अगर बाइबल पढ़ोगे भी तो कहीं पर भी ये अंदेशा आपको नहीं मिलेगा कि मरियम को वो अधिकार दिया गया है जिसमें वो आधिकारिक रूप में कलीसिया के कलीसिया में कोई अधिकार रखती हो। Even the early disciples who became the leaders of the church made it a point to tell the people that they were nothing more than bond servants of the Lord. प्रभु के जितने शिष्य थे जब वे सेवकाई करते थे और प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते थे तो अपने प्रचार में ये जरूर बातें बोलते थे कि वे भी केवल अपने आप को प्रभु यीशु का दास करके समझे। Just like Mary had confessed earlier. ठीक उसी तरह जिस तरह से मरियम ने अपने आप को प्रस्तुत किया कि मैं प्रभु की दासी हूं। God never intends us to bow before other people or pray to them. परमेश्वर कभी ये इच्छा नहीं रखते कि हम दूसरों के सामने सर झुकाए और उनको प्रार्थना करें। Only the one Master, the Lord Jesus Christ, is worthy of all praise, adoration, worship, and glory. केवल एक गुरु, एक स्वामी है और उनका नाम है प्रभु यीशु जो मसीहा है। वही हमारे सारे आदर, सारे गौरव, सारी आराधना, सारी महिमा के योग्य है। So then, what really is Mary's role in God's grand story? तो परमेश्वर की ये जो महान दास्तान है, इसमें मरियम का क्या किरदार है? Mary is not intended to be an object of our faith. मरियम हमारे विश्वास का मुख्य केंद्र कभी ना बने। But she is a model for our faith. लेकिन मरियम एक नमूना या एक आदर्श विश्वास कैसे किया जाए या किस पर किया जाए उसका एक आदर्श बन सकती है हमारे लिए। She acknowledged God to be her savior. उसने कबूली की कि परमेश्वर उसका उद्धार करता है। She knew that she needed to be saved from her sins. वो बखूबी जानती थी कि उसे खुद उसके स्वयं के जो पाप है उससे उद्धार की आवश्यकता है। That's exactly what God expects us to acknowledge. और यही वो बात है जो परमेश्वर अपेक्षा रखते हैं हमसे कि हम भी इसको एक्नॉलेज करें या कबूल करें। God doesn't become your savior if you believe in Mary. अगर आप मरियम के ऊपर विश्वास रखोगे परमेश्वर आपका उद्धारकर्ता कतई नहीं बनेगा। He becomes your savior when you believe like Mary. लेकिन जिस तरह मरियम ने विश्वास किया अगर आप उस तरह का विश्वास करोगे तब आप परमेश्वर से उद्धार पाओगे। When like Mary you take God at his word. कि जिस तरह मरियम ने परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में लागू किया, कार्यरत होने दिया, उस तरह आप भी करोगे तब। When like Mary you believe that the baby who was conceived in her is the Messiah, the Son of God, the Savior of the world. कि जिस तरह मरियम ने उसके कोख में पनप रहे बच्चा जो मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है, जगत का उद्धार करता है, उस बात पर विश्वास किया, आपका भी विश्वास बनता है तब। When like Mary you believe that God is a promise-keeping God and one who accomplishes whatever he has said. और जिस तरह मरियम का विश्वास था कि परमेश्वर वादा और वाचा बनाए रखने वाला परमेश्वर है और जो बात उन्होंने कही थी उसको परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर है, आप भी उसी तरह उस परमेश्वर पर विश्वास रखें। And if he has said that whoever believes in the Son will never perish but have eternal everlasting life, और जिस तरह परमेश्वर ने कहा है कि जो कोई भी
पुत्र पर विश्वास करेगा उसका कभी भी नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। He will keep his promise. जैसे परमेश्वर ने ये बात कही है, परमेश्वर उस बात को भी, उस वादे को भी बिल्कुल बनाए रखेंगे। Mary is called blessed because she believed. मरियम इसलिए धन्य कहलाती है क्योंकि उसने विश्वास किया। I know that I am blessed too because I have believed what Mary believed. मैं जानता हूं कि मैं भी धन्य हूं क्योंकि जो जिस पर विश्वास मरियम ने किया उस पर मेरा भी विश्वास है। Do you believe what Mary believed? मरियम का विश्वास क्या आपका भी विश्वास है? Please allow me to pray for all those who've come. Once again, I want to thank you for coming, and I trust that this has been a fruitful time and would have given you some things to think about. आपको सोचने में मजबूर करे और मैं हमारी यही आशा है कि आप इससे आशीषित हो. You can join me in my prayer or you can just listen as I call upon the Lord to use this session for the benefit of all of those who joined and perhaps for those who will view this later on. Let me pray for you. स्वर्ग के महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने हम सबको इस तरह से इकट्ठा किया कि आपके वचनों में हम मनन कर सके और मरियम के जीवन की इन घटनाओं को हम देखें और उस पर गौर करें और इस बात पर को समझ पाए कि मरियम धन्य इसीलिए हुई क्योंकि उसने आप पर विश्वास किया, क्योंकि उसने आपके वचनों पर विश्वास किया। प्रभु, हमें एक ऐसा मन दीजिए इस नाताल के समय में, इस क्रिसमस में, कि हम भी आपके वचनों को पढ़े, जान पाए और मरियम का जैसा विश्वास आप पर था वैसा ही हमारा भी हो। प्रभु, आपने हमें अच्छा समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जो कोई भी यहाँ पर जुड़े हैं उन सब के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम नहीं जानते कि वो अपने जीवन में किस स्थिति में है, किस समस्या में है, उनका आपके साथ कैसा रिश्ता है, लेकिन प्रभु हम मानते हैं कि आपने अपने वचनों के द्वारा उनसे बातें की है। प्रभु, उन्हें मदद कीजिए कि वो आपके पास आए और पूरे जेन्युइननेस के साथ आपके सामने अपने आप को समर्पित करें और आपकी इच्छा हो तो इन वचनों का सही मतलब और इनका सिग्निफिकेंस इन्हें समझने में मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं समय के लिए और हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें मदद कीजिए कि ये 2020 का क्रिसमस सीजन हम परमेश्वर के वचन के अनुसार मना सके। ये विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। All right, thank you so much for joining. I trust that this was beneficial. If you have been invited by someone, uh, I'm really thankful that you accepted this invitation. अगर आपको इस विषय में कोई भी सवाल हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर जिसने आपको इनवाइट किया है आप उनसे पूछिए। अगर कुछ आपको डाउट्स है या किसी वचन को आपको और सखोलता से समझना है, you can ask us and we would be happy to help. Once again, thank you for joining and may God bless you all. Thank you. And advanced Christmas wishes to all of you. Yeah. Bye.